नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। 16 से 27 मई तक 76वां कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। दुनिया भर से कलाकार, मॉडल, महान फिल्म निर्माता और निर्देशकों का जमावड़ा कान फिल्म महोत्सव इस बार बहुत ही खास है, खासकर भारत के लिए। फिल्मों के इस महान उत्सव में जहां दुनिया भर के फिल्मी सितारे रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं, तो भारतीय सितारों का जलवा भी कुछ कम नहीं है। चाहे बात भारतीय सिनेमा की हो या फिर भारत पवेलियन की। आज कान फिल्म फेस्टिवल का 8वां दिन है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फेस्टिवल में और जानते हैं कि आज क्या कुछ रहा खास। नमस्कार, भारत एट कान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। कान में लगा है सितारों का मेला, क्योंकि कान में चल रहा है फिल्म फेस्टिवल। भारत के वो कौन से सितारे हैं जो कान पहुंच रहे हैं? भारत के वो कौन से सितारे हैं जो रेड कारपेट पर नजर आ रहे हैं? साथ ही क्या कुछ चल रहा है भारतीय पवेलियन में? किन मुद्दों पर हो रही है चर्चा? बताएंगे आपको अगले आधे घंटे भारत एट कान में। दुनिया भर में होने वाले फिल्म महोत्सव और फिल्म बाजार केवल फिल्मों के प्रदर्शन का ही एक माध्यम ना बने, बल्कि दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज के टैलेंट को आपस में साझा करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी वो बने। साथ ही तकनीक और कंटेंट भी आपस में साझा हो। ऐसे फिल्म महोत्सव और फिल्म बाजारों में इसको लेकर एक मंथन भारतीय पवेलियन में हुआ। बदलते दौर में आने वाले समय में तमाम फिल्म फेस्टिवल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, भारतीय पवेलियन में इस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। क्या बातें हुई, आइए आपको सुनाते हैं। We found that the outreach of social media was about 80%. So, I mean, out of all the outreach, 80% was social media. And the expenditure which we made for social media was barely less than the 5%. We did a lot of other things. We wrapped buses, we wrapped trains, that this is the film festival we are having in the city. We did a lot of promotion on the TV. We did some radio buzz also. So all what, I mean, including the papers, press, everything. But I feel that I kind of resonate with you that social media has got a very positive reach now. So I think festivals can think of, doing more of social media and less of other things. We are a platform of exchanges between those festivals receiving the accreditation. And I think, interestingly, during the pandemic, all the structure, we set up a long time ago to organize these exchanges between festivals proved to be interesting because it was certainly a reactive reaction to the pandemic, to be able to share the expertise, to be able to share the tools that all of you have been putting in place during the pandemic when you could actually operate or when you had to go online and so on and so on. So what we feel at the moment is clearly a need to continue that conversation in a more proactive and positive way. We have an issue with reviews because as a trades, they have less and less reviews which are published. So, and this makes it very difficult, especially for big festivals with many films. So at the Berlinale we have 250 films in the festival. And as you can imagine, not every film gets a review. Yeah. So that's a big issue, how we can create visibility also for the films which are not in the competition program. We welcome every year more than 100 countries, of course, including Philippines. And we are also developing a lot of collaborations with India. We've been last January in India, and we are planning some workshops. We do workshops all along the year in different countries. I do feel like so much is around building publicity and marketing and
all of that other piece around it. I certainly don't have all of the answers, but I think that's where we are really looking at, and not relying so much on external outlets, but how we as an institution can actually start to build a greater profile and publicity ourselves for those filmmakers. कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान भारत के कुछ कलाकार हैं जो डेब्यू कर रहे हैं। मृणाल ठाकुर, भारत की एक्ट्रेस, मॉडल, कान पहुंची, रेड कारपेट पर डेब्यू किया और रेड कारपेट पर चलने के बाद हमने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा मृणाल ठाकुर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं। कान में इस वक्त हम हैं और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के तमाम वो कलाकार जो डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी पहुँच रहे हैं। मृणाल ठाकुर हमारे साथ हैं। मृणाल, कान पहुँची हैं, कितना बड़ा पल आपके लिए? बहुत ही बड़ा पल। इनफैक्ट मैं जाया नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। हर आर्टिस्ट, हर कलाकार का ये ख्वाब होता है टू बी ऑन the red carpet of Cannes, and I am so happy that I am here. जब आपको पता चला पहली बार कि आपको कान जाना है और रेड कारपेट पर वॉक करना है, क्या एक्साइटमेंट था? वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? I was like, सच्ची मुझे? Are you serious? पर बहुत सालों से ये मैंने सोच के रखा था। There was somewhere down the line एक वो कहते हैं ना विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्ट करना, तो वो था कहीं ना कहीं। आज वो पूरा हो रहा है और बहुत ही it's a great feeling to represent our country at a global platform. और अब की जो एरा है जहाँ पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है इंडस्ट्री में कदम रखने का जहाँ पर फिल्में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके साथ, नॉट जस्ट फिल्म्स बट अभी OTT के साथ साथ एक क्लिक पे आपका कंटेंट पूरे विश्व में दिखाया जाता है। वैलिडेशन, अपने कल्चर को बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और गानों के साथ साथ, फिल्मों के साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज को भी अभी ग्लोबल लेवल पे इतना रिकग्निशन मिल रहा है, एकेडमी हो, तो आई एम जस्ट सो हैप्पी टू बी एंटरिंग द इंडस्ट्री एट दिस टाइम। मृणाल, आप बता रहे हैं आप बड़ी खुश हैं कि इस समय आपने एंटर किया है, और ये वो वक्त है जब इंडस्ट्री कंटेंट क्रिएटर के तौर पे दुनिया भर में जानी जा रही है, और भारत के कलाकारों को, आप जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस को मौका मिले इंटरनेशनल लेवल पर, उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है। इंडिया पवेलियन में कई सेशंस भी हो रहे हैं। कैसे मानते हैं आप इसको अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से अगर देखें ग्लोबली? I must thank the entire team, क्योंकि the government, उनके वजह से आज हमें ये मौका मिल रहा है। ग्रे गूस की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। और when you have that one push, जब then you start feeling कि yes, I'm confident, और वो हर एक push ज़रूरी होता है। So I'm glad that the government is Indian government is taking so much interest, and India में तरह की जो फिल्में, तरह के जो subjects है, उनको world recognition मिल रहा है। So yeah. कंटेंट की अगर बात की जाए, चेंज हो रहा है अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, तो खासकर OTT प्लेटफॉर्म्स तरह के आने की वजह से आपको लगता है इससे अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी है इंडियन एक्टर एक्ट्रेस की? ऑफ कोर्स। और शुरुआत में वो होता था कि ये एक मीडियम के एक्टर है, सिर्फ ये इसी मीडियम के लिए काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप देखें तो कितने सारे ऐसे शोज हैं और फिल्में हैं जहाँ पर कलाकार, चाहे वो नॉर्थ से है या साउथ से है, वो हर जगह से आके they make a film. Or today I'm known as an Indian actress, but not as Bollywood actress या Tollywood actress. इसीलिए it's interesting, और opportunities भी important है, the vision is also important. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लव सोनिया, जो एक इंडी फिल्म है, इंटरनेशनल लेवल पर कई फेस्टिवल्स में जा चुकी है, उसके साथ साथ मुझे सुपर 30 बाटला हाउस का पार्ट बनने का, हिस्सा बनने का मौका मिला। उसके साथ साथ नाउ आई एम डूइंग सीतारामम जैसे फिल्में, और एक और तेलुगु फिल्म कर रही हूँ। तो मैं बस चाहती हूँ कि मराठी हो गया, हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, बस अभी तमिल, कन्नड़ा, मलयालम
कितने सारी भाषा है, पंजाबी, गुजराती, इन सब के साथ साथ अगर वो फ्रेंच सिनेमा क्यों ना हो या स्पेनिश फिल्में क्यों ना हो, it's, you know, the art is growing and we are recognizing that. और thanks to all these people who put down so much efforts, उनके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. मराठी और तेलुगु में भी आपने अभी तक काम किया है, लेकिन आपकी इच्छा है कि कुछ और रीजनल लैंग्वेजेस की जो फिल्में हैं उनमें आप काम करें. लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कई रीजनल लैंग्वेज की फिल्में जो हैं उनको यहाँ पे कान में एक अच्छा स्पेस मिल रहा है. मणिपुर के जो एक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, रेड कारपेट पे हमने देखा. कैसे देखती हैं इसको कि रीजनल फिल्में जो हैं, रीजनल लैंग्वेज की फिल्में जो हैं वो किस तरीके से आज इंडिया में काम कर रही हैं और दुनिया भर में उनके लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज अब क्रिएट हो रही हैं? अगर आप रीजनल फिल्म्स के बारे में बात करें तो जैसे मराठी में शाया है, कन्नड़ में कंतारा है, तो ये हमारे रूट से जुड़ी हुई है और काफी लोग इन सारी चीजों से, स्पेशली आज की जो पीढ़ी है वो इन सब से वाकिफ नहीं है. सो इन फिल्मों के थ्रू वी गेट टू लर्न सो मच, वी गेट टू एक्सपीरियंस व्हाट इट इज ऑल अबाउट. तो आई एम सो हैप्पी कि फाइनली इट्स नॉट जस्ट एक या दो लैंग्वेज, बट यहाँ पे चाहे वो मणिपुर से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो सिक्किम से हो, चाहे वो किसी भी पार्ट से हो, वी आर सेलिब्रेटिंग सिनेमा. एंड आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इंडियन सिनेमा पूरे तौर पर अगर सेलिब्रेट करना इज अ बिग डील. और मैं बहुत खुश हूँ कि आई थिंक इट्स माई डेब्यू. तो ऐसे मंच पर आके इतने सारे लोगों से मिलकर, फिल्म मेकर से मिलना, फिल्मों के बारे में डिस्कस करना, कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करना. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी थे जहाँ पर आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक, क्या ये ऐसा होता है? क्या इस देश में, इस कंट्री में के इस हिस्से में ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम वाकिफ नहीं है. सो इट्स अ लर्निंग फॉर मी. मैं हमेशा से एक ऐसी लड़की रही हूँ जो फिल्म मेरे लिए एस्केप्स होते थे. बचपन में मैं म्यूट करके, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, DD1 पर हर वीकेंड फिल्में आती थी, तो परमिशन नहीं होती थी घर पर देखने के लिए, तो म्यूट करके चोरी छिपकर देखने, मतलब वहां से ये जर्नी शुरू होके आज मैं यहाँ आपके साथ, दूरदर्शन के साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मृणाल, कान की गलियों में ना इस समय फैशन का जलवा दिख रहा है. पूरी दुनिया भर का फैशन यहाँ नजर आ रहा है और आप बहुत अच्छे लुक में, बहुत सुंदर लग रही हैं इस वक्त. कैसे फैशन के लिहाज से अगर देखें तो भारत में फिलहाल चीजें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कान की गलियों में तो हम देख पा रहे हैं कि एक से बढ़कर एक फैशन जो है वो नजर आ रहा है. जी, मतलब भारत क्यों पीछे रहे इन सारी चीजों में? भारत शुड बी फैशनेबल. जब भारत का नाम पहले आए तो हम किसके लिए जाने जाते हैं? हमारे एम्ब्रॉयडरी के लिए, कलर्स के लिए. अगर आप देखिए गुजरात में जिस तरह से वो घाघरा होता है उनका, द ज्वेलरी होती है ऑक्सीडाइज, उसी तरह से महाराष्ट्र में लक्ष्मी हार होता है, चपला हार होता है, तोंगल होते हैं, नथ होती है. सो इतनी सारी चीजें हमें सेलिब्रेट करने के लिए. एंड फैशन में व्हाई शुड वी स्टे बिहाइंड? तो आई थिंक दिस, जैसे मैं कार से उतरी, मैं सारी उन्होंने जब जो यहाँ के रहने वाले लोकल्स, उन्होंने जब मेरी साड़ी देखी, सो उनके रिएक्शन लाइक वाओ. बट आई मस्ट से थैंक यू टू ऑल दोज इंडियन डिजाइनर्स. इनफैक्ट आज मैंने जो आउटफिट पहना है वो है फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक कुट्योर. उन्होंने ये कस्टमाइज बनाया है मेरे लिए, और क्योंकि उनको पता है मुझे साड़ी बहुत पसंद है और वो चाहते थे कि मैं एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और ऐसा एक डिज़ाइन पहनूँ जहाँ पे आई फील कंफर्टेबल, एंड आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल इन साड़ीज. तो व्हाई नॉट फ्लॉन्ट? एंड आई थिंक दिस इज द टाइम जहाँ पर काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं इन सारे लुक्स से. और फिर वो द लुक्स नाउ इट्स सो लवली वेयर मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका में है या स्पेन में है, वो चाहते हैं कि उनकी शादी इंडिया ट्रेडिशन के हिसाब से हो. वो चाहते हैं कि वो उनके शादी में साड़ीज पहने. तो आई एम रियली हैप्पी द वे नॉट जस्ट इंडियंस बट द पीपल आउटसाइड इन द ग्लोब आर एक्सेप्टिंग आवर कल्चर, एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग, इट्स लवली. मृणाल, एक चीज और है, एक चर्चा यहाँ पर हो रही है इंडिया पवेलियन में कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, इंडिया के जो रिलेशंस हैं, वो हम इंडियन फिल्मों में लेकर आते हैं. और यही कारण है कि इंडिया फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका वो इतिहास बड़ा समृद्ध है. आप मानती हैं, क्योंकि आप बता रही हैं कि आप बड़ी कल्चरल रही हैं शुरू से, साड़ी और इन सब बाजू का जिक्र आप कर रही हैं, इंडिया का कल्चर
ऐसे प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा दुनिया तक पहुंचता है? ऑफ कोर्स आई मीन आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, हर फिल्म रूटेड होती है, यू विल, हाउ डू आई एक्सप्लेन, विच इज़ योर फेवरेट फिल्म? DDLJ देख लो, मतलब DDLJ जिसमें गाने इतने खूबसूरत है, एंड आई थिंक इंडिया मशहूर तो है, बहुत टैलेंटेड है, एंड दिस इज आवर USP, सॉन्ग्स, म्यूजिकल. अगर आप देखें, और RRR ऑल्सो वन द अवार्ड नाउ. तो म्यूजिकल, जो सरगम है, जो जस्ट एडिंग दिस टुगेदर. अपनी फैमिली, अगर आप कल्चर के बारे में पूछे तो सबसे ज़्यादा हम साथ साथ है जैसी फिल्में हैं, जो फैमिली बेस्ड है, इमोशंस, ह्यूमन ड्रामा, इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारे इंडियन सिनेमा. सो इट्स वेरी न्यू, इट्स डिफरेंट, इट्स समथिंग दैट यू विल नॉट सी आउटसाइड इंडिया. कितने दिन से तैयारी चल रही थी कांस आने के लिए और कैसी तैयारियां थी? आपको सच बताओ तो मैं शूट कर रही थी जो नानी 30 की फिल्म, अभी हालांकि शूटिंग चल रही है, और डे बिफोर येस्टरडे के मतलब 2 दिन पहले तक वो ज़रा डाइसी था कि मैं शायद आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, बट व्हाट इज़ मेंट टू बी, इट्स मेंट टू बी. और शायद मेरे नसीब में लिखा था कि आज मैं आपके साथ इंटरव्यू करूं और यहाँ पे कैन फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनूं. बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल, हमसे बातचीत के लिए. मृणाल ठाकुर हमारे साथ थी, फिल्म एक्ट्रेस हैं, रीजनल फिल्मों में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, और यही कह रही हैं कि भारत में जड़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं तभी आप आगे बढ़ रहे हैं, और तभी यही कारण है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है, चूँकि अपनी फिल्मों में भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का जो ट्रेडिशन है वो सहेजती है, और लिहाजा दुनिया भर में आज जो कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भारत स्थापित हो रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है. साइरस पूनावाला को आप जानते होंगे. जी हाँ, वही साइरस पूनावाला जो वैक्सीन किंग के नाम से दुनिया भर में मशहूर है. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, कान फिल्म फेस्टिवल की खबरों के बीच साइरस पूनावाला की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं. दरअसल साइरस पूनावाला भी कान पहुंचे हैं, और भारतीय पवेलियन में जब वो पहुंचे तो चाहने वालों की भीड़ लग गई. ना सिर्फ भारत के लोग वहां पर मौजूद थे, बल्कि तमाम दुनिया भर की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से आए लोग भी साइरस पूनावाला से मिलने के लिए भारतीय पवेलियन में पहुंच गए थे. हमने साइरस पूनावाला से भी खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं. दुनिया भर को कोविड के दौरान वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले साइरस पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं. साइरस पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन हैं. सर, सबसे पहले तो यही कान फिल्म फेस्टिवल में आप पहुंचे हैं, और आपकी मौजूदगी, कई सितारे यहाँ पर आ रहे हैं, और जिस तरीके से कोविड के दौरान दुनिया भर में जो पैंडेमिक हमने देखा, आप किसी सितारे से कम नहीं थे सर. भारतीय पवेलियन में आपकी उपलब्धता इसको दर्शाती है. सबसे पहले तो यही सर, कान फिल्म फेस्टिवल में आए हैं, फिल्मों को देखते हैं आप? क्यों नहीं, ये तो आप तो सब जान पहचान के हैं, और मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. तो मैं बीच पे आया था, और जब विक्रम मेरे फ्रेंड है बोले कि चलो 1-2 मिनट वहाँ भी अपने दोस्त लोग को मिल लेंगे. भारत की फिल्मों की खासियत क्या आपको लगती है, क्या अच्छा लगता है आपको? So very heart rendering and realistic, and then only I go to such movies which are really practical and not imaginary. तो इंडियन फिल्म्स बहुत बढ़ते चल रही है, और मेरी उम्मीद है कि वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहीं और भी जीते, जैसा लास्ट ईयर आपको ऑनर मिला था ना, तो और इंडिया को ऑनर मिलेगा तो और अपना प्रेस्टीज, और अमेरिका और बिलायत यहाँ नाम ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है. सर, दुनिया वैक्सीन को बड़ी उम्मीदों की नज़रों से उस वक्त देख रही थी पैंडेमिक के टाइम पे. क्या आपका फोकस था उस समय जब पूरी दुनिया को वैक्सीन की ज़रूरत थी? ये गुड क्वेश्चन. हमारा फोकस ये था कि सबकी ज़िंदगी बचाए, और हमने कहीं 30-40 मिलियन चिल्ड्रन की लाइफ अब तक बचाई है जो मर गए थे इफ वी हैड नॉट गिवन द वैक्सीन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जैसा निमोनिया, टेटनस, मीजल्स. अभी इसके अंदर जब पहले खबर आई तो हमने बोला कि नुकसान होवे या फ़ायदा होवे, पहला वैक्सीन बना लो, सक्सेसफुल होगा तो देश का फ़ायदा होगा. तो भगवान की मेहरबानी से सक्सेसफुल है, हमारे साइंटिस्ट भी बहुत होशियार है, और हमने
वैक्सीन लाइसेंस के आगे ही हमने खुद तो लिया था, मेरे लड़के ने, स्टाफ ने लिया था, और हमने एकदम ऐसा लो कॉस्ट की टेक्नोलॉजी ली जिसमें $2-3 के अंदर अब वैक्सीन दे सकते। दूसरे लोग तो ऑल ओवर द वर्ल्ड $20 देने पड़ते थे। तो इसके लिए अब 2 बिलियन डोज इंडिया और दूसरे कंट्रीज को सप्लाई कर सके टाइम में। सर क्या एक चैलेंज था इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाना? बहुत बड़ा चैलेंज था कि पहला रिएक्शन ही होना चाहिए, फिर सेफ्टी की मोर इम्पोर्टेंट देन इवन सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमको कई ट्रायल्स पे ट्रायल्स करते गए कि देखे कि कोई रिएक्शन नहीं आवे, कोई को कुछ डिजीज नहीं हो जावे गलत से। और वो इन वैक्सीन मैन्युफैक्चर सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एफिकेसी। दुनिया ने भारत की ताकत भी देखी वैक्सीन के मामले में। हाँ, अबाउट 80 मिलियन जो चिल्ड्रन है 120 में, तो हमारा वैक्सीन लेते हैं और उससे उनकी हेल्थ और जान बच जाती है, और उससे मुझे भगवान की बहुत मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दूरदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए। साइरस पूनावाला हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया भर को कोविड के दौरान बड़ी मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई, और जीवन रक्षा वैक्सीन की अगर बात की जाए तो वो उपलब्ध कराने वाली दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं उसके मालिक हैं साइरस पूनावाला। कान पहुंचे हैं, कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्में देखते हैं, बता रहे हैं, और फिल्मों की कहानियां जो है भारतीय फिल्मों की वो उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो भारत एट कान में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जा रहे हैं महेश राघवन की परफॉर्मेंस के साथ। दक्षिण भारत के फोक म्यूजिक को आईपैड पर किस तरीके से वो बजा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, सुनते हुए जाइए। श्री कृष्ण Bye.